Hello people, this is Sakshi. Welcome again to the channel Pianisticious. For those who are new here, I am a first year BSc nursing student at GMC Bhopal. Welcome and welcome back to the channel. So in today's video, we will be discussing and I will be sharing the summary of the chapter, which is the digestion and absorption. So this is the first chapter of human physiology and we will be discussing all these topics plus NCERT highlights of that chapter. I will also be describing you some of the tips and tricks or the flowcharts that I have made. Plus I will be also providing you the additional points or additional summaries of that particular chapter. So आज के वीडियो में मैं आपको चैप्टर की समरी प्रोवाइड करूँगी प्लस आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग एडिशनल और एक्स्ट्रा पॉइंट्स विथ यू टू. So before starting this video, don't forget to hit that subscribe button below and please kindly subscribe as I made video related to nursing as well as the preparation videos for the PNST, PVFT means for nursing examination as well as for forestry and pre-agriculture as well as the veterinary sections. So all these exams will include NCERTs for their examination and in their syllabus. So you can kindly hit that subscribe button below to stay connected and get updated every time I upload a video. So now without any further delay, let's get started. Before starting any chapter, there is a name or there is a page in which a scientist related to that particular chapter is mentioned. और उस पेज पे आप लोगों को साइंटिस्ट की डिस्कवरीज और अचीवमेंट्स दिए गए होते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू रीड दैट पेज फर्स्टली. So for this chapter we have to open this page and the scientist is the Alfonso Corti. So let's start with the scientist. His name is Alfonso Corti. He is born in 1822 और उनने अपनी स्टार्टिंग मीन्स उनने अपनी स्टडी की स्टार्टिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स से स्टार्ट की. मतलब स्टार्टिंग में उनका इंटरेस्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स में था, रेप्टाइल्स के मेनली, बट देन ही हैज़ चेंज हिज इंटरेस्ट टू द मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम. द टाइम ऑफ 1851 उन्होंने एक साइंटिफिक पेपर प्रेजेंट किया विच समराइज ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू द ऑर्गन ऑफ कॉटी. नाउ व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ कॉटी? The scientific paper was mainly based on the cochlea's basilar membrane having some kind of hair structures and having hairs too. So the main function of the cochlea's basilar membrane structure is that they convert sound vibrations into nerve impulse. मतलब कि जैसे ही कोई एक sound vibration आती है तो वो उसे brain के through nerve impulse में convert करता है. और this is the function of the organ which is known as the organ of Corti. Now the scientist then the Alfonso Corti, the scientist who was born in 1822, died in 1888. So this was the summary that is given before one page. So now अब आप लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कीजिए और NCERT बुक्स के साथ बैठिए और ट्राई टू नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स इन द साइड मार्जिन्स. प्लस आप लोगों को इस चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले भी कुछ पेजेस या कुछ स्पेस अवेलेबल है तो आप वहाँ पे भी नोट डाउन कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग में हम चैप्टर्स की मेन उस पूरे पेज में क्या दिया गया है वो चीज़ डिस्क्राइब करेंगे. प्लस अगर उससे रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास अवेलेबल है मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करूँगी. सो इन द स्टार्टिंग हमने देखा कि डाइजेशन होना ज़रूरी है बिकॉज डाइजेशन जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है जिससे हमारी बॉडी उन सारे न्यूट्रिएंट्स और उन सारे विटामिन्स को एब्जॉर्ब कर पाए और अपने डेली फंक्शंस के लिए यूज़ कर पाए. सो दिस इज़ द डाइजेशन which is the breakdown of biomacromolecules into the simpler ones. Now let's start with the alimentary canal. The length of alimentary canal मतलब कि पूरे alimentary canal from the mouth to the anus is about 8.3 meter. Approx इसकी length 8.3 meter होती है. This is not given in the NCERT तो आप लोग इस चीज़ को नोट करिए. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो anterior opening है it starts with the mouth and ends with the rectum or from the anus. So firstly we will call that the anterior opening is mouth and the posterior opening is anus. तो उसके बाद हम देखेंगे कि माउथ से हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. सो नाउ वी हैव टेकन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड. तो नाउ अब हमें उसे चबाने के लिए या फॉर च्यूइंग पर्पसेस वी नीड आवर टीथ्स. सो स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि द ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ द टीथ्स एंड द मस्कुलर टंग. सो जो हमारा हर एक दांत है मीन्स ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन विच इज़ नोन एज थीकोडोंट.
सो आप इस वर्ड को हाईलाइट कीजिए, दिस इज़ द मेजर पार्ट। सो इन ह्यूमन बींग्स हमारे पास दो टाइप के टीथ्स प्रेजेंट हैं, टेम्पररी या डेसिडियस टीथ हम जिन्हें बोलेंगे, जो कि हमारे फ्रॉम 7 to 10 ईयर्स के पहले होते हैं, प्लस पूरी लाइफ या लेटरल लाइफ में हमारे पास टीथ्स होते हैं दैट आर नोन एज द परमानेंट टीथ्स। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ टीथ, और अगर हमारे ह्यूमन बींग्स में ये दो टाइप के टीथ है, सो इस अरेंजमेंट या डेंटिशन टाइप को हम लोग डायफोडोंट बोलेंगे। देयर आर ऑल्सो सम काइंड ऑफ एनिमल्स दैट आर प्रेजेंट जिनमें ये अलग अलग टाइप के टीथ्स होते हैं और अलग अलग टाइप के डेंटिशंस भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ दैट इन द ह्यूमन बींग्स देयर आर 32 परमानेंट टीथ्स, और ये सारे डिवाइड होते हैं इंटू 4 डिफरेंट टीथ्स विच आर इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। All these 32 teeth are divided into upper jaws and the lower jaws, और हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है द डेंटिशन फार्मूला। अलग अलग एनिमल्स के टीथ का अरेंजमेंट अलग अलग होता है और उनका डेंटिशन फार्मूला भी अलग अलग होता है। सो इन ह्यूमन बींग्स इट इज़ 2 1 2 3 in the upper jaw and 2 1 2 3 in the lower jaw too. After that, the hard chewing surface of the teeth is made up of enamel, which is from the ectodermal origin. This point is not mentioned in your NCERT, so note down it कि जो enamel portion है या hard chewing surface है, that is secreted by the ectodermal origin, और ये ameloblast, mainly ameloblast cell से originate होता है। सो हार्ड च्यूइंग सरफेस को हम लोग एनेमल बोलते हैं, और जबकि जो पल्प कैविटी होती है दैट इज़ नोन एज डेंटाइन। डेंटाइन का ओरिजिन या उनका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है फ्रॉम द ओडोंटोब्लास्ट, एंड अगर हमें यही चीज़ बोन में देखा जाए तो दैट इज़ फ्रॉम ऑस्टियोब्लास्ट। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि बोन की डिग्रेडेशन को हम लोग क्या टर्म से जानते हैं। सो नाउ लेट्स गेट बैक। स्टार्टिंग में जब हमने इनेमल डिस्कस किया विच इज़ द हार्ड च्यूइंग सरफेस एंड इट हेल्प्स इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड, आफ्टर विच हम लोग आते हैं कि देयर इज़ अ मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन जिसे हम टंग बोलते हैं। ये फ्लोर कैविटी या ओरल कैविटी से अटैच्ड होती है बाय अ पार्ट दैट इज़ नोन एज द फ्रेन्यूलम। द स्पेलिंग इज FRENULUM. After that, these tongue have the small projections or the structures that are known as papillae. After that, जब हमारा food masticate हो चुका है, then the oral cavity leads to a short pharynx. Pharynx हमारे air प्लस फूड के लिए एक कॉमन पैसेज है, प्लस हमें जो ईसोफेगस है, हमारा ट्रैकिया ईसोफेगस में ओपन होता है। दैट ओपनिंग इज गाइडेड बाय अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस। मतलब कि जब हम अगर एयर ले रहे हैं तो उस टाइम पे वो हमारे फूड पाइप को या फिर हमारे ईसोफेगस को क्लोज कर देता है। नाउ स्टमक अगेन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जिसे हम लोग फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक रीजन बोलेंगे। मतलब ये चार जो पार्ट्स हैं, द कार्डियक पोर्शन इज सबसे पहले वो वाला पोर्शन जहाँ पे ईसोफेगस ओपन हो रहा है, देन कम्स द फंडिक रीजन। सो मेनली दैट फंडस इज द अपर पोर्शन, मतलब कि हमारे ईसोफेगस से ओपन होगा लेकिन स्टमक अरेंजमेंट इज समथिंग लाइक दैट नो। सो ये पोर्शन होता है जैसे कि हमने जब फूड लिया तो उस टाइम पे हम कुछ पोर्शन या कुछ एयर भी ले लेते हैं अंदर। सो आफ्टर गेटिंग ऑल दीज फूड्स, और या फिर उस एसिड रिएक्शन के बाद जो भी एयर फॉर्म होती है या फिर जो भी बबल्स फॉर्म होते हैं वो सारे इस फंड पोर्शन में या इस फंडस पोर्शन में कलेक्ट हो जाती है। सो नाउ दैट फंडस पोर्शन देन इज द मेन बॉडी एंड द लास्ट वन इज द पाइलोरिक पोर्शन। अब स्टमक का पाइलोरिक पोर्शन ओपन होगा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये भी एक स्फिंक्टर के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। दैट स्फिंक्टर इज नोन एज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर फर्स्टली वी विल नो द ड्यूडेनम दैट इज द सी शेप्ड पोर्शन, then we will go to the jejunum and the last portion or the highly coiled portion that is known as ileum. इसके बाद the small intestine, मतलब कि जो ileum portion है वो large intestine में open होगा, और that is again divided into the cecum, colon and rectum. That cecum part is again divided. We will be discussing this in the later section. So it is a small blind sac जिसको हम लोग जिसमें मेनली सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, प्लस उससे एक नैरो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है दैट इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन नाउ।
in the starting or in the initial stages that organ is known as the vermiform appendix, और इसमें सेल्यूलेज डाइजेशन के लिए मतलब इसमें सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए सेल्यूलेज एंजाइम प्रेजेंट होती थी. It is that vermiform appendix is also the storehouse of WBCs2. Now इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अगेन डिवाइडेड है. दैट सीकम पार्ट्स ओपन. नाउ अब हम देखेंगे कि जो सीकम पार्ट है वो ओपन होगा इनटू द कोलोन रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और ये कोलोन पार्ट भी 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्टली एन असेंडिंग, देन द ट्रांसवर्स, देन द डिसेंडिंग पार्ट एंड अ सिग्मोइड कोलोन रीजन. सो स्टार्टिंग में ये जो डिसेंडिंग पार्ट है वो ओपन होगा इनटू द रेक्टम, एंड देन रेक्टम विल बी ओपनिंग इनटू द एनस सेक्शन. सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. मतलब कि हमारे माउथ से वो फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स विल सर्व अ कॉमन पैसेज. फेरिंग्स के पास एक एपिग्लॉटिस है जो उसको कवर करता है. उसके बाद जाएगा ये ईसोफेगल रीजन में. ईसोफेगल रीजन से फूड जाएगा टू अ जे शेप्ड ऑर्गन जिसे हम स्टमक के नाम से जानते हैं. दैट स्टमक इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स, जो कि मेनली कार्डियक रीजन होगा, द डोम शेप्ड रीजन विच इज नोन एज फंडस, मेन द बॉडी, और द लेटरल सेक्शन जिसे हम लोग पाइलोरिक रीजन बोलेंगे. अब स्टार्टिंग में जो ईसोफेगल ओपनिंग है वो भी एक स्फिंक्टर से रेगुलेटेड होगी, जिस स्फिंक्टर को हम लोग गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर बोलेंगे. और जो लास्ट पाइलोरिक पोर्शन है ये ओपन होगा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली सी शेप्ड ऑर्गन या सी शेप्ड पार्ट जिसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, ओपनिंग भी एक स्फिंक्टर के थ्रू रेगुलेटेड होगी, और दैट इज कनेक्टिंग द पाइलोरिक रीजन टू द इलियम रीजन टू द ड्यूडेनम रीजन विच इज़ द सी शेप्ड रीजन ऑफ दैट स्मॉल इंटेस्टाइन. तो इस स्फिंक्टर को हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलेंगे. अब ये ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड होगी. दैट इलियम रीजन विल ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के भी हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं. That is known as the cecum, colon and rectum. Colon is again divided into some of the parts, but first let's discuss कि cecum जो है वो एक small sac like structure है जिससे एक finger like projection originate होगा जिसे हम vermiform appendix बोलेंगे. This is the vestigial organ now, but initial stages में इसमें cellulase enzyme present होता था जो कि सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता था. प्लस इट इज़ ऑल्सो अ स्टोर हाउस ऑफ WBC. अब नाउ दैट सीकम पोर्शन विल ओपन इनटू द कोलोन पोर्शन. अब ये कोलोन पोर्शन भी जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्टली द पोर्शन विल बी नोन एज द असेंडिंग कोलोन. देन उसके बाद हम देखेंगे अ ट्रांसवर्स कोलोन. देन वी विल गो टू द डिसेंडिंग कोलोन, एंड लास्टली सिग्मोइड कोलोन विच विल ओपन इनटू द एनस. स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ रीजन से लेकर हमारे एनएस पोर्शन तक हमारा फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, मेस्टिकेट हो चुका है, सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं. अब दैट वेस्ट मटेरियल विल बी रिलीज थ्रू द एनएस पोर्शन. सो आई एम थिंकिंग दैट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू ऑल दीज थिंग्स. सो ये वीडियो शायद 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा. इन द फर्स्ट सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. इसके बाद आई विल बी अपलोडिंग अ नेक्स्ट वीडियो. तो आप लोग इस समरी को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस कि ये जो अलग अलग लेयर्स हैं, लाइक सेरोसा इज मेड ऑफ मीजोथीरियम एंड कनेक्टिव टिश्यूज. दैट सबमस्कुलरिस लेयर इज मेड ऑफ स्मूथ मसल्स. देन द सबम्यूकस लेयर इज मेड फ्रॉम द लूज कनेक्टिव टिश्यूज, और नर्व वेसल्स, ब्लड वेसल्स और इन सब से मिलकर बनी होती है. नाउ कम्स द लास्ट लेयर विच इज़ द म्यूकोसा. और म्यूकोसा वो लेयर है जो इरेगुलर फोल्ड्स, विलाई और रुगे जो है वो फॉर्म करती है. सो विलाई जो है स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं फिंगर लाइक जो कि हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. दैट विलाई इज अगेन डिवाइडेड इनटू सम स्मॉल स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं. ये जो है हमारी पूरी इंटेस्टाइन का मेनली सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए. नाउ विलाई जो है वो सप्लाइड की जाती है एक लार्ज कैपिलरी ऑफ नेटवर्क्स या फिर लार्ज लिम्फ वेसल से जिसको हम लैक्टियल के नाम से जानते हैं. म्यूकोसल एपिथेलियम के पास गॉबलेट सेल्स होती हैं. ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस सीक्रेट करती हैं, और ये म्यूकस हमें लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ताकि फूड जो है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पास हो पाए. Also in the villi there are some bases or the crypts in between the villi, और इस intestine के पोर्शन को हम लोग
क्रिप्ट्स और लिबरकुंस बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुंस। दिस इज़ द मेन पार्ट, और आपको ये नेम याद रखना है। दैट नेम और दैट डायरेक्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड कि वो क्रिप्ट्स जो कि विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई के बीच में होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? तो दैट आर नोन एज द क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुंस। और हमारी ये जो चारों लेयर है उनके डिफरेंट पार्ट्स मॉडिफाई होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स। So mainly we have discussed a lot of things. Now we will be discussing about the digestive glands or about the digestion of foods, their processes, plus the reactions। और starting का जो 262 पेज नंबर है that is little complicated। So मैं इन चीज़ों को आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाना चाहूँगी, and that video will be available in 1 or 2 hours टुडे इटसेल्फ। सो आप लोग पहले इतने पोर्शन को कंप्लीट कीजिए, उसे रीड कीजिए और अपने एनसीईआरटी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को चीज़ें थोड़ी कम समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो की स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लीजिए, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो आप इस वीडियो को स्पीड फास्ट करके भी देख सकते हैं। So now the next video will be uploaded in 1 or 2 hours. So I will be uploading the next video very soon. So stay connected। आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए और नोट्स भी फॉर्म कर लीजिए। In the next section we will be discussing about the further things, और मैं आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से प्लस द फ्लो चार्ट ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर दूँगी एंड समझा दूँगी। So now this is Sakshi। I will catch you in the next video।